Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So as we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. And if you see it, today is actually Thursday and we are here with the Hindu analysis of Thursday. Okay? So, am I audible guys? आवाज आ रही है? Okay, fine. So this is an article, Karnataka records 72.68% turnout in assembly polls. This is the most important article on the first page. शायद आपको पता होगा, the legislative assembly elections are happening, right? So legislative assembly elections are direct elections, है ना? Okay. So whosoever gets majority here will have their chief minister in the state of कर्नाटक. ठीक है. सो लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विधानसभा चुनाव, उसमें जो जीतता है, जिसकी बहुमत आती है, उसका मुख्यमंत्री बनता है ना. सो द whosoever gets majority in legislative assembly, it is done through direct elections. People go and vote. It is right now happening. I mean, 1 or 2 days back it happened in Karnataka. Direct elections happen. So once the result will be announced, whosoever will be having the majority of the seats, either alone or let's say through coalition, will be having their chief minister. ठीक है, इसे का ये तो आपको पता होगा hopefully, है ना. So a fierce campaign happened and all. First of all, please tell me what is the total number of seats in the Karnataka Legislative Assembly. Your options are 224, 230, 190, 250. What is the right answer to this question? आपको ये बताना है कि कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना है. बताओ, हाउ मेनी सीट्स आर देयर. देखो, चूंकि न्यूज में तो आपको पता होना चाहिए, मतलब आप अगर आप अखबार पढ़ रहे होगे तो जस्ट हैव सम बेसिक आइडिया अबाउट इट. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 224. ए इज द राइट आंसर और 1 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. यस, फॉर स्टडीज रश्मिकांत, वेरी गुड. सो हाउ मेनी सीट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक योर ओन चीफ मिनिस्टर. कितना चाहिए बताओ. तो अब इसमें जैसे लिखा ना है कि 72.68% टर्नआउट हुआ, मतलब लेट्स से देयर आर 100 रजिस्टर्ड वोटर्स. 100 रजिस्टर्ड वोटर्स. रजिस्टर्ड वोटर्स मतलब जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम होता है, not everyone. So for being registered voter, you have to have a voter ID card and get your name registered in the poll. I mean that पोल लिस्ट है ना. उसमें से अगर 100 लोग रजिस्टर्ड हैं तो 72.68 पीपल केम एंड वोट. ठीक है, तो 70% से प्लस है तो थोड़ा अच्छा माना जाता है. पोलिंग परसेंटेज क्रॉसेस द 2018 फिगर विद अ लो टर्नआउट ऑफ 54.5%. जो लास्ट ईयर था वो बहुत अच्छा नहीं था, मतलब इट वाज समवेयर अराउंड 54.51%. एंड दिस ईयर द वोटर टर्नआउट इज मच हायर विद 72.68%. सो ये थोड़ा अच्छा माना जाता है, राइट. So if it is 70% plus, it is generally considered as good enough. Yes, it should be 80-90% plus, but yes, at least compared to the last election of 2018, 72.6% is good enough. And yes, people should participate in voting. Okay. Why? Because first of all, this is their right. The second thing is it represents that the citizens are active in democracy, है ना. तो वोट देने से ये होता है कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो जनता है वो एक्टिव है, डेमोक्रेसी का पार्ट है. इवन इफ यू डू नॉट लाइक अ कैंडिडेट, देयर इज अ प्रपोजल ऑफ नोटा बटन. ठीक है, तो नीचे में नोटा होता है. सो एटलीस्ट you go and press the nota button to ensure that yes, you are participating in democracy. That is what the idea is, कि maximum people should go and vote, right, है ना. In fact, you must have seen Election Commission of India publishes a lot of things कि आप जरूर जाए वोट दें, because that's a part of democracy and all. Yes, अगर आपके पास 224 सीट है, if you want to make the chief minister, yes, for studies is right. So 224 में if you want to make the chief minister, इसको 2 से divide करोगे, what will be the number? 112. ठीक है. But if you are getting 112, you cannot make the chief minister because this is half. You need to cross the half mark. So it means you need 113 seats to make your chief minister. ठीक है, आधे मार्क को क्रॉस कर रहा है. This we use the word absolute majority for this. The term used is absolute majority. So there are different words like simple majority, special majority, absolute majority. ये वाले को हम लोग absolute majority कहते हैं
कि हाफ का मार्क क्रॉस करना है. सो राइट नाउ मींस जस्ट बिफोर दिस इलेक्शन बीजेपी हैड 113 सीट्स. ओके, ठीक है. फिर अपोजिशन के पास 74, कांग्रेस के पास थी 27, जेडीएस जनता दल सेकुलर के पास है ना. सर हंग हाउस क्या मतलब होता है? यस, सम ऑफ द एग्जिट पोल्स आर सेइंग कि हंग असेंबली हो जाएगा. मे बी हंग असेंबली विल हैपन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हंग असेंबली? नाइस क्वेश्चन. अब देखो, जैसे देयर आर 3 प्रोमिनेंट पार्टीज, द वन इज बीजेपी, द सेकंड इज कांग्रेस एंड द थर्ड वन इज जेडीएस. अगर किसी को भी मेजॉरिटी सीट्स नहीं आए, मेजॉरिटी मतलब 113 नहीं आए, आई हैव टोल्ड यू ना, यू नीड 113. ठीक है. So let's say BJP did not get 113, Congress did not get 113, JDS did not get 113. So we call it as hung assembly, कि यानी किसी के पास नहीं आया. तो उसके बाद क्या हो सकता है? पोस्ट पोल अलायंस कैन हैपन. पोस्ट पोल अलायंस मतलब इलेक्शन के बाद हो सकता है 2 पार्टी एक साथ आके बना दे. फिर राइट नाउ दे आर नॉट इन अलायंस, बीजेपी कांग्रेस जेडीएस आर सेपरेट, बट इफ let's say after the election results they come up to make more than 2 parties come together and make more than 113, then they can have their chief minister. अभी कहीं के पे मैं देख रहा हूं न्यूज में कि हंग असेंबली वर्ड लिख रहा है कि शायद हंग असेंबली हो जाए. इसका मतलब है कि 113 किसी को नहीं आया. ठीक है, सब स्प्लिट कर गया, किसी को नहीं आया. दैट्स कॉल्ड हंग असेंबली. ओके, यस, क्लियर है. तो इसमें ये लिखा है 72.68% पीसफुल वोटिंग हुआ. ठीक है. इसमें देखो इस सिटी में इतना हुआ. डिफरेंट सिटीज में बताने से याद नहीं रखना है कि कौन से शहर में कितना परसेंट वोटिंग हुआ. दैट्स यू आर नॉट सपोज्ड टू गो एंड रीड इट, है ना. देन फर्स्ट पेज में एक और आर्टिकल था, जो बाइडेन टू होस्ट स्टेट डिनर फॉर मोदी ऑन जून 22, है ना. सो 22 जून, 22 जून 2023 मोदी जी विल बी इन यूएसए एंड जो बाइडेन विल बी होस्टिंग द स्टेट डिनर. ठीक है, तो डिनर पे बुलाएंगे उनको. ठीक है. सो व्हाइट हाउस मींस यूएस प्रेसिडेंट हाउस, है ना. सो दे हैव सेड दैट यस मोदी जी विल बी गोइंग देयर. ठीक है, तो बस इसी पे आप इतना डिटेल नहीं जाना. ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर. On 21st May at 6 p.m. we'll be having a free workshop, strategy to ace NLU call in CLAT 2024 with Alpa ma'am. So the link is given in the description from where you can register for it. या आप डाउनलोड करो ऐप को, BYJU'S exam prep app, go to CLAT section and on this day and this time you can be there. 21st May 6 p.m. Okay, and we are running this CLAT 2024 comprehensive course. If you want to get this course at a cheaper rate, we are providing a scholarship. ठीक है. So the scholarship test is on 14th May at 11 a.m. in the morning. If you qualify, you will get up to 90% off. ठीक है, on this. We are providing actually 300 plus recorded videos, 300 plus hours of live session, 35 plus mock tests, etc. If you have question, call at this number 95388 95678. Okay, yes. Or Monday ko, this Monday at 6 p.m. we'll be having revision series of questions that are being asked in newspaper analysis. जो हम लोग द हिंदू एनालिसिस में आपको क्वेश्चन देते हैं, उसका पूरा रिवीजन करा रहा हूं मैं फ्रॉम फरवरी ऑनवर्ड्स. सो दैट विल बी आल्सो अ वेरी गुड थिंग. यू कैन ज्वाइन, डाउनलोड आवर ऐप. ठीक है, BYJU'S एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड करो फ्रॉम प्ले स्टोर, गो टू क्लैट सेक्शन. आई विल बी मीटिंग यू दिस मंडे एट 6 p.m. सिमिलरली नेक्स्ट मंडे में भी और नेक्स्ट मंडे में भी सब में आई विल बी हैविंग सेशन. ओके, now let's talk about this, a ground view of the India space policy 2023 written by Mr. Rakesh Sood. He's a former IFS officer, ex-Indian Foreign Service officer. Okay, so he writes, on April 20 this year, ISRO released Indian Space Policy 2023 that had been in the works for some years. The document has been received positively by industry. However, it needs to be followed up with suitable legislation accompanied by clear rules and regulation, etc. and all. Recently, ISRO ने ये रिलीज किया था, कहीं पे होगा, हाँ, इसको कहते हैं हम लोग इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023. This has been recently released by ISRO, Indian Space Research Organization. अच्छा, अब ये बताओ, where is the headquarter of ISRO and who is the chairman of ISRO? ये बताओ तो. Okay, yes. So he is awaiting liftoff of the second space age, which had that India's modest entry into the first stage, etc. and all. देखो अब ये दो चीज बात कर रहे हैं. एक वो बता रहे फर्स्ट स्पेस एज, ठीक है, दूसरा बता रहे सेकंड स्पेस एज. सो ही इज टॉकिंग अबाउट दीज टू स्पेस एज. तो ये कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, बट लाइक एक आइडिया बता रहे हैं. ठीक है, हाँ, बेंगलुरु इज द हेडक्वार्टर और मिस्टर एस सोमनाथन इज द इसरो चीफ. वेरी गुड. हाँ, जोया खान, नम्रा आफ्ताब, सानिया अंसारी, ऑल राइट. सो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु. ये सब पूछते हैं एग्जाम में,
Bengaluru, and the chairman or head is S. Somanath. Okay, just have an idea about it. 1996 1969 ISRO founded. So first space age began in 1957. I hope you are aware जब Sputnik 1 भेजा गया था. And I hope you are aware the first person to go into space was Yuri Gagarin from USSR. ये हम लोग बचपन में पढ़ते भी हैं स्कूल डेज में, है ना. The first human to go into the space was Yuri Gagarin. Okay, so we are talking about space. But if someone is asking first human to take a step on moon, then it was an American called as Neil Armstrong, है ना. US कहते हैं. Okay, स्पेस पे जाने वाले यूरी गागरिन सोवियत यूनियन कहते हैं, यूएसएसआर के, और मून पर कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे फर्स्ट, है ना. सो दैट इज 1950s 60s में जो स्टार्ट हुआ था. वी कॉल इट एज फर्स्ट स्पेस एज, इसको कहते हैं उस जमाने को. अब इसको ये कहते हैं सेकेंड स्पेस एज इज हेयर, यानी अब जो है ना वो सेकेंड स्पेस एज है. अब कब से शुरू हुआ है तो बताना मुश्किल है. सम पीपल से कि 1990s ऑनवर्ड्स को सेकेंड स्पेस एज कह सकते हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, अभी का जो 2012-15 का है वो सेकेंड स्पेस एज है. सो वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल बट जस्ट हैव एन आइडिया दैट द रीसेंट वन इन व्हिच वी आर हियर राइट नाउ इज कॉल्ड एज सेकेंड स्पेस एज. ठीक है. सो इंडिया का जो फर्स्ट स्पेस एज है 1960s में वी लॉन्च सम सैटेलाइट. यूएस ने सप्लाई किया था नाइक स्पाशी व्हिच वी लॉन्च इन 1963 फ्रॉम थुम्बा. फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वाज लॉन्च इन 1975. आई होप यू आर अवेयर, आर्यभट्ट नाम से, जो कि पूरा मेड इन इंडिया था, है ना. सो लॉन्च बाय इसरो एंड ऑल. So these are the age of first space age, है ना. तो ये सब वो बता रहे हैं. ठीक है, इसको उतना डिटेल नहीं जाना है, बट जस्ट हैव एन आइडिया. नाउ जो सेकंड स्पेस एज है उसमें और बहुत हाई टेक्नोलॉजी आ गई है ना. सो नाउ वी आर हैविंग टॉकिंग अबाउट द फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी, OTT, 5G etc. So these are, I mean, we of course these all are provided with the help of I mean satellites only. अरे जो इंटरनेट का कनेक्शन वो सैटेलाइट से ही होता है ना. So all these OTT platforms, 5G internet, this and that, all these modern technologies are dependent on these satellites, which are, we can call it as, we are right now in second space age. ठीक है. तो इसी की वो बात कर रहे हैं. It is estimated that by enabling environment, Indian space industry could grow by $60 billion by 2030. तो हो सकता है 2030 तक $60 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाए. ठीक है. So if the growth keeps on happening, it may create 2 lakh jobs in future. We hope so. ठीक है. So इसी से की बात हो रही. Then for this only reference to security in the document, making it clear that the focus is on civilian peaceful applications and all. Yes. हाँ. अब देखो, militarization of space is prohibited. There are a lot of treaties for that. जैसे कुछ treaty, जैसे आपने सुना होगा outer space treaty. Have you heard these treaties name? Okay. इसमें क्या है कि आप स्पेस को मिलिटराइज नहीं कर सकते हैं. So the world has done a treaty and all that. Yes. So space should only be used for peaceful purpose. मतलब ऐसा नहीं कि सैटेलाइट भेजें ताकि दूसरे को अटैक करे. It cannot be done. Okay. So basically the satellite can only be used for positive thing, let's say for providing internet, 5G connections and all. ठीक है. So that is what the idea is. Considering space-based intelligence, reconnaissance, surveillance, communication and all. ठीक है. Navigation. You understand navigation जैसे GPS technology है. That is an example of navigation. If you want to go from place A to place B, with the help of that navigation technology, you can reach even if you do not know the road. अगर आपको रोड नहीं पता है कैसे जाना है, मैप के माध्यम से, जीपीएस से आप जा सकते हो. ठीक है. कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ऑफ कोर्स, टॉकिंग टू ईच अदर ऑन व्हाट्सएप कॉल, पोजीशनिंग, है ना. सर्वाइलेंस, रिकनेसा मतलब ये स्पाइंग या सर्वाइलेंस कह सकते हो ना, सर्वाइलेंस एटसेट्रा के लिए. फॉर मिलिट्री पर्पस ऑल्सो ऑफ कोर्स यूज फॉर दैट एंड ऑल. ठीक है. India conducted ASAT anti-satellite test in March 2019 and in the same year set up Defense Space Agency and all. हाँ, इंडिया ने ASAT टेस्ट कंडक्ट किया था, एंटी सैटेलाइट टेस्ट. मतलब कि अगर कभी रिक्वायर्ड हो, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ एंड दिस इज इन स्पेस और ये हमारा सैटेलाइट है एंड लेट्स से दिस इज अ थ्रेट, तो वी कैन शूट इट डाउन. ठीक है. मान लो कि ये यहाँ पे स्पेस में कोई ऐसा सैटेलाइट आ गया, एनिमी सैटेलाइट, वो थ्रेट है हमारे इसके लिए. मान लो फॉर एग्जांपल वर्स्ट केस इन फ्यूचर, देन इन दैट केस वी कैन शूट इट डाउन. दैट इज द टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज एंटी सैटेलाइट डायरेक्ट एसेट टेस्ट. ठीक है. सो दैट वाज देयर. तो इसी सब की बात हो रही. देन दे आर टॉकिंग अबाउट कि यस, यूएस में जो होता है स्पेस पॉलिसी, दे आर आल्सो, आई मीन नासा कंडक्ट्स, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इज देयर, which is controlled by the US government and all.
अब देखो इसरो में दो तीन चीज बता रहे हैं वो, देखो फर्स्ट इज इसरो हैज रिसेंटली कम अप विद इन स्पेस, ये इंपॉर्टेंट है ना, देखो ये क्या, दिस कॉल्ड इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन। इट्स जॉब, व्हाट इज इट्स जॉब, टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर्स और प्राइवेट प्लेयर्स in actually private players in space sector। स्पेस सेक्टर में सिर्फ गवर्नमेंट, जैसे इसरो तो गवर्नमेंट एजेंसी है ना, तो सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी नहीं बल्कि प्राइवेट एजेंसी भी आए, लिखा हुआ ना, देखो पढ़ो, स्पेस सेक्टर रिफॉर्म टू एनेबल, रुको दूसरे कलर से लिखता हूं, टू एनेबल एंड फैसिलिटेट, अरे क्या हो गया, just wait, to enable and facilitate the participation of private players. So the InSpace is an organization, of course it is a part of ISRO, okay, its job is actually to enable private players participation, ताकि private companies भी space technology में आए, ठीक है। now the next one is NSIL, हाँ, like Blue Origin, SpaceX is a private company US की, right, रश्मिका था। So New Space India Limited, so this has replaced Antrix। Antrix जो था इसरो का कॉमर्शियल आर्म था, इसरोज कॉमर्शियल आर्म, ठीक है, and this has been replaced by NSIL, and NSIL is also a, you can say, a commercial arm of ISRO, ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए, इसमें बहुत डिटेल नहीं जाना है। Now since we are talking about privately made private sector participation in space, this is a question for you। In November last year, launched first private-made rocket. What is the name of the manufacturer? Lockheed Martin, Agnikul Cosmos, Skyroot Aerospace, none of the above. Your time starts now. Last year November में privately made rocket launch किया गया था वही सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। So which company made this actually rocket? देखो लॉकहीड मार्टिन तो यूएस की कंपनी है जो कि जेट्स वगैरह बनाती है, ठीक है, आई होप यू आर अवेयर, सो वन इज नॉट द करेक्ट आंसर। Yes, Zoya Khan, Priya Chavan, very good. Other people, everyone, yes, Sani Ansari, you are right. The right answer is C. Skyroot Aerospace ने प्राइवेटली लॉन्च रॉकेट बनाया था। अग्निकुल कॉस्मोस ने प्राइवेट लॉन्च पैड बनाया है, प्राइवेट कंपनी मेकिंग लॉन्च पैड, ठीक है, सो बी केयरफुल, दोनों न्यूज में था, ठीक है, सो कुछ लोग शायद बी और सी में कंफ्यूज कर गए होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यस, रश्मिकांत, लिप्सा, ऋषि कुमार झा फॉर स्टडीज, यू ऑल राइट। देखो इंडिया लॉन्च फर्स्ट प्राइवेटली मेड रॉकेट, देखो 18 नवंबर 2022 का यही फोटो है, और इसका नाम है परम, देखो ये लिखा ना परम, स्काईरूट एरोस्पेस लिखा है, विक्रम एस भी लिख सकते हो ना। सो ये इसरो के चीफ हैं मिस्टर एस सोमनाथ, आप देख सकते हो, द नेम इज परम, विल कैरी 3 पेलोड्स एंड ऑल। सो ये जो है स्काईरूट एरोस्पेस का, ठीक है, ओके, परम मिशन का नाम है, और ये जो है ना विक्रम एस रॉकेट का नाम था, ठीक है, विक्रम एस वाज द नेम ऑफ द रॉकेट। एस से स्काईरूट एरोस्पेस, विक्रम इज फ्रॉम विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम, है ना, आपको पता होगा, विक्रम साराभाई के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, विक्रम साराभाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम, सो यू शुड बी नोइंग। और नवंबर ही में न्यूज थी, इंडिया गेट्स फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड एंड कंट्रोल सेंटर, वो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा ही में, दिस हैज बीन मेड बाय अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है, ओके। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, सिंस अग्निकुल कॉस्मोस इज इन द न्यूज, इट इज बेस्ड इन वेयर? आईआईसी बैंगलोर, आईटी दिल्ली, आईटी मद्रास, एनआईटी त्रिची, व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? क्या सही जवाब बताओ? यस, सबको लाइक बटन प्रेस कर दो, एवरीवन। ओके, व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? बताओ यार, द राइट आंसर इज आईआईटी मद्रास, सी इज द राइट आंसर। यस, कमलेश, जोया खान, यू आर राइट, हाँ, आईआईटी मद्रास के ही अंदर है, देखो, इंडियन एरोस्पेस मैन्युफैक्चर बेस्ड इन एनसीआरटी ऑफ आईआईटी मद्रास, ठीक है, सो द राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। यस, ऋषि कुमार झा, रश्मिकांत ओझा, यू आर राइट। मैंने बता दी, एनएसआईएल इज इसरो's commercial arm, it will become the interface for interacting with the industry and all, so just have an idea about it। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा सा अग्निकुल कॉस्मोस पढ़ लेना। इसरो कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विच इज, हाँ,
under PMO directly under Minister of Science Technology, Ministry of Earth Sciences, Ministry of Commerce and Industry. तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताओ। देखो इस तरह के भी मैं देख रहा था ना आर्टिकल में डिस्कस था कि नासा यूएस गवर्नमेंट के अंडर में है, व्हाइट हाउस के अंदर ये वो। उसी तरह से दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू दैट इसरो कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अगर आप इसरो की वेबसाइट पे जाओगे तो ऊपर में लिखा होगा DOS। इसरो के चेयरमैन को कहते हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऐसे लिखते हैं DOS। इसरो चेयरमैन इज ऑफिशियली कॉल्ड एज ऐसे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, है ना। ओके, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कहां आता है बताओ तो। कुछ लोग 3 बता रहे हैं, कुछ लोग 2 बता रहे हैं। सो ओनली वन करेक्ट आंसर, रश्मिकांत ओझा इज राइट। इट इज डायरेक्टली अंडर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ठीक है, ये सभी इस मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं है। ठीक है, सो देखो ये आई हैव टेकन इट फ्रॉम विकिपीडिया ओनली। ठीक है, एजेंसीज अंडर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस लिखा ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, में बड़ा सा लिख देता हूँ, छोटा सा लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये दोनों डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आता है। ठीक है, अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में है इसरो, है ना, इसरो लिखा है, और एंट्रिक्स। अब एंट्रिक्स तो रिप्लेस हो गया ना NSIL से, वो कमर्शियल नाम ही है इसरो का। ठीक है, ये NSIL बन गया और ये तो इसरो है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ये पूछे कि DRDO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर में डायरेक्टली, तो बोला नहीं, DRDO इज अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, ये सब माइन्यूट चीजें हैं लेकिन पूछते हैं, जैसे मिनिस्ट्री दे हैव आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन CLAT पेपर, so they can ask। इसरो अक्सर न्यूज में रहता है, they have asked already questions related with space technology and all, तो पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, the fallout of Putin helping make NATO great again। अब देखो एक क्वेश्चन आपके लिए, which of the following has recently become the member of NATO? Your options are Sweden, Norway, Switzerland, Finland. What is the right answer? Who has recently become the member of NATO? NATO का मेंबर कौन बना है? Yes, the right answer is प्रिया चवन, जोया खान, नंबर आफ्ताब। हाँ, तो अभी रिसेंटली जो बने वो फिनलैंड बना। ठीक है, स्वीडन जो है ना अभी प्रोसेस में, इट हैज अप्लाइड फॉर इट, बट आई थिंक अभी तक वो बना नहीं है, सो द राइट आंसर वुड बी डी। और स्विट्जरलैंड तो खैर जनरली न्यूट्रल कंट्री है, स्विट्जरलैंड हार्डली पार्टिसिपेट इन एनी पॉलिटिकल इवेंट एंड ऑल। तो नॉर्वे ऑलरेडी है, पहले से ही है। ठीक है, सो ऑन फिनलैंड जर्नी टू ज्वाइन नाटो, दिस इज एक्चुअली लास्ट मंथ इट वाज वेरी मच इन द न्यूज, तो स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन नाटो नाउ? अब बताओ ये वाला क्वेश्चन का आंसर। Your options are 30, 31, 39, 41। और एक और क्वेश्चन बताओ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो? हेडक्वार्टर ऑफ नाटो कहां है एंड हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन नाटो? हाँ, लास्ट मंथ अप्रैल में, आप कह सकते हो अप्रैल के आसपास ये न्यूज में था, है ना, नाटो मेंबर्स। Yes, the right answer is now we are having 31 members. So B is the right answer. Zoya Khan, Sania Ansari, Forest Studies, Priya Chavan, you all are right, है ना? पहले 30 थे, अब now we are having one more, 31, and headquarter is in Brussels. Yes, very good. Sania Ansari, good. Brussels, capital of Belgium. ठीक है, yes. Okay, तो ये सब मेंबर्स हैं। अगर आप गौर से देखोगे, if you see it carefully, तो नॉर्वे ऑलरेडी मेंबर था, है ना। अब ये जो है ना, ये वाला अभी इसको ब्लू नहीं किया गया है, ये है फिनलैंड, एंड दिस विल बी द बिकमिंग द मेंबर ऑफ नाटो। इससे होगा क्या, देखो ये रशिया है, सो रशिया से इसका बॉर्डर टच करता है ना। सो नाउ नाटो इज एक्चुअली अ कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ओके, so this will help, I mean it becomes a member of an alliance, military alliance, then of course at least it will have some protection from Russia. So now it is not so easy for Russia to attack Finland and all. I hope you are aware of these things, collective security. Washington Treaty पढ़ लीजिएगा जाके, Washington Treaty और North Atlantic Treaty कहते हैं, Article 5 talks about collective defense of NATO, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा।
That is what is being talking about कि recently actually Finland became the 31st member on April 2023. Sweden will become member eventually. वो बता रहे कि हो सकता है, देखो ये वाला स्वीडन है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला फिनलैंड है. So Finland has become member. Sweden is in a process. It has also applied. So most likely Sweden will also become the member. Once the ratification process gets over, which will swell NATO's territorial expansion base and make the Baltic Sea a NATO lake. अब देखो ये बता के रहे हैं बाल्टिक सी को नाटो लेक बता रहे हैं. सो दिस इज बाल्टिक सी है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला. सो बाल्टिक सी विल बिकम अ नाटो लेक. मतलब ऑथर के हिसाब से मतलब क्या हो नाटो लेक का मतलब, तो मतलब ये वाला सब नाटो मेंबर्स है, ये नाटो मेंबर्स ऑलरेडी थे, ठीक है. दिस हैज बिकम राइट नाउ. इफ स्वीडन बिकम्स a member, then of course you can say this and this entire will be NATO members. तो ये जो बीच में लेक है ये वाला, this will be called as NATO lake, means the countries around the Baltic are most of them are NATO members, so they are defining it as NATO lake. उसी को वो NATO lake बोल रहे हैं, ये वाली बाल्टिक सी को, ठीक है. Is it clear? ठीक है. So that is what is talking. For long, Nordic countries like Finland, Sweden had refused to take sides and all and maintaining military non-alignment. अब देखो नॉर्डिक कंट्रीज किसको कहते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एंड डेनमार्क. दीज 5 आर कॉल्ड एज नॉर्डिक नेशंस, ठीक है. अब देखो जैसे डेनमार्क का पार्ट है ग्रीनलैंड, सो ग्रीनलैंड विल ऑटोमेटिकली बिकम पार्ट ऑफ नॉर्डिक, ठीक है. सो दे हैव मेंटेन्ड न्यूट्रलिटी. They did not, I mean in the past did not want to join any of the, let's say, military alliance like NATO or any other organization. वो चाहते थे कि हम न्यूट्रल रहें, किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं करें. बट आपको पता होगा, आई होप रिसेंट इन द लास्ट 1 year द रशिया हैज अटैक्ड यूक्रेन एंड ऑल. सो फियरिंग दैट द फिनलैंड हैव ज्वाइंड नाटो एंड नाउ स्वीडन इज आल्सो अप्लाइंग फॉर दैट, ठीक है. इज इट क्लियर? ओके. देयर रिलेशंस विद रशिया वेर मॉडरेट एट बेस्ट इफ नॉट डीप इनफ एंड ऑल. इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है. रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज नॉट ओनली ब्रॉट बैक टू द यूरोपियन रियाम इन द पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड ऑल. सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स एंड ऑल, उस फियर की वजह से actually they have decided ना Russia will build its military presence in adjoining northern areas etc. तो Russia will also build military presence. तो northern areas में रशिया जो है हो सकता है यहाँ पे कहीं पे और military presence बढ़ाए. That is what is talking about, है ना. In recent years, Nordic region has caught the frequency of India's strategic radar. PM Modi visited Copenhagen in May last year in India Nordic Summit. तो मोदी जी भी यहाँ गए थे, कोपेनहेगन, यहाँ डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन. Okay, he visited last year. Underlined India's deep interest in cooperation. This region now coming under NATO umbrella will complicate India's strategic choices. So just have an idea about that. Okay, yes. Now there is talking about Arctic Council. India has been added as observer status in Arctic Council. तो ये वाला जो रीजन है ना, जैसे ये इंडिया है, ये रशिया है. This is Arctic Ocean. So to protect Arctic Ocean from, let's say, global warming and all, they have made Arctic Council. तो जो बाउंड्री मेंबर्स है, देखो ये वाला, यहाँ पे देखो जो डार्क ब्लू मेंबर्स देख रहे हो, ये वाला यूएस है, ये है ग्रीनलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, जिसका यहाँ पर आर्कटिक ओशन से बाउंड्री टच करता है. डार्क ब्लू आर एक्चुअली मेंबर्स एंड लाइट ब्लू आर एक्चुअली ऑब्जर्वर्स. तो इंडिया भी एक ऑब्जर्वर है, ठीक है. So to protect Arctic Ocean, they have made Arctic Council, in which India has also been added as observer. Observer हो सकते हैं, member इसलिए हो सकते हैं कि of course you need to have a boundary with Arctic, है ना. So just have an idea about this. So that is what he is talking about. तो इसी की वो बात कर रहे हैं, ठीक है. Okay. Now the next is snap judgment. Every birth or death should not be seen as success or failure of Project Cheetah. अब देखो recently, I hope you are aware, last year I think 8 cheetahs were brought from Namibia to India in Kunu National Park. Then in January this year, 12 more cheetahs were brought. So 8 plus 12 is 20 cheetahs. Now 3 have died. So we are left with 17. 3 cheetah की मौत हो गई है. So now actually this is becoming serious issue कि क्यों ऐसा हो रहा है and all. So that is what he is talking about, है ना. देखो लिखा ना है, 12 cheetahs to India were brought from South Africa. 2 have already died and 8 were brought from Namibia and 1 has already died, है ना. Okay. So in total out of 20, 3 has died. तो 3 चीता जो है ऑलरेडी डेथ हो गई है. अब देखो इसमें क्या है कि the aim is to establish a sustainable population of about 35 cheetahs in the next decade by bringing a few every year from Africa. अगले 10 साल में ये टारगेट है
कि 35 चीता टोटल लाना है और उसको सर्वाइव करा देना, ये टारगेट। तो एक्चुअली होता क्या है, हाँ कुछ बच्चे भी हुए थे, कप्स भी हुए थे, राइट, ऋषि कुमार झा, गुड। हाँ, तो होता क्या है ना कि जब इन्वायरमेंट चेंज होता है, हैबिटेट होता है ना, एनिमल ऐसे नहीं होता है ना, जैसे इट्स नॉट लाइक ह्यूमंस कि कोई बंदा अगर इंडिया में रह रहा है वो चला गया अपना साउथ अफ्रीका में वहां जाके रह रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज एनिमल्स नीड अ स्पेसिफिक हैबिटेट। सो इफ दे आर लिविंग इन साउथ अफ्रीका एंड इफ दे आर डिस्प्लेस्ड, दे नीड सम टाइम टू एडजस्ट, है ना, नया जगह लाया जाता है उनको, एनिमल है ना, तो एडजस्ट करने में टाइम लगता है उनको, उस टाइप का हैबिटेट चाहिए, ठीक है। सो समटाइम्स दीस थिंग्स डू हैपन, ठीक है। Thus, it is implicit that there will be many deaths among the animal if one factor in both the natural span of the cat. तो बोल रहे कि yes, it is implicit कि बहुत सारे हो सकते हैं मौत हो इसमें, इस प्रोसेस में, और भी चीता लाया जाए, उसको रखा जाए, सबको जिंदगी बचाए रखना थोड़ा मुश्किल है, कुछ कुछ की डेथ होगी, बट ओवरऑल टारगेट ये होना चाहिए कि इन 10 years 35 चीतास शुड बी देयर एटलीस्ट, है ना। तो ये सब वो बता रहे हैं, ठीक है। Arrival of cheetahs is far from an ordinary event and all, तो इसी सब की बात हो रही है ना। There is also criticism that Kuno National Park is inadequate to host 20 cheetahs. Kuno National Park, I have told you, in Madhya Pradesh, उसमें क्रिटिसिज्म ये था कि आपने 12 + 8 20 चीता रखा है, ओके। So they are saying कि in Kuno National Park, the criticism is that all the cheetah 20 cheetah cannot be adjusted in Kuno National Park. Some of them should be sent at some other places in some other national park. मतलब एक क्रिटिक्स ये बता रहे हैं कि 20 चीता एक नेशनल पार्क में नहीं रह सकता, मतलब कम जगह में ज्यादा चीता रखा जा रहा है, कुछ और जगह मूव किया जाए, दैट इज व्हाट द क्रिटिसिज्म इज एंड ऑल, ठीक है। इसको पढ़ लेना। देयर इज अ अथॉरिटी कॉल्ड एज एनटीसी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, व्हिच इज एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट चीता, ठीक है, ओके, है ना। नामीबिया और साउथ अफ्रीका से मंगवाया गया था, ये सब पता होना चाहिए आपको, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, ना। पोखरान टू अ मोमेंट ऑफ प्रोफाउंड इपिफैनी, इसको भी पढ़ लेना। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे, दिस वाज आस्क्ड इन क्लैट 2022, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। बताओ उसका सही जवाब क्या है। व्हाट इज द राइट आंसर? The first successful nuclear bomb test conducted by India in 1974 is called as Prithvi, Pokhran 2, Smiling Buddha, Surya. देखो, पोखरान स्माइलिंग बुद्धा को हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं पोखरान 1। पोखरान इज अ प्लेस इन राजस्थान, है ना, और यही हुआ था 1974 में, conducted by Indira Gandhi. So the right answer is option C. देखो ये previous year question का है। Yes, Krishna Garg is right. C is the right answer to this question. ठीक है। पोखरान 2 जो है ये हुआ था 1998 मई में, ठीक है। ये इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ था, when इंदिरा गांधी was the prime minister, and ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में, अटल बिहारी वाजपेयी, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, ठीक है। मई 1998 में हुआ था। इसको हम लोग ऑपरेशन शक्ति के नाम से भी जानते हैं ना, ऑपरेशन, ओके, यस। सो जस्ट हैव एन आइडिया। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत सारे बच्चे बी और सी में गड़बड़ा गए कि पोखरान 2 लिखा है, पोखरान, अरे वो पोखरान 2 लिखा है, वो 98 में हुआ था, पोखरान 1 1974 में हुआ था, 1974 का पूछ रहे हैं। सो बी केयरफुल, डू नॉट गेट कंफ्यूज, एंड दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये आपको सिखाता है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। सो दिस टेल्स यू हाउ टू यू शुड प्रिपेयर, है ना। तो ये पोखरान 2 की बात कर रहे हैं, यानी ये वाली की बात कर रहे हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, बट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट पोखरान 2 हियर, दैट इज 1998 का, ठीक है। तो आज 11 मई है, सो वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 25 ईयर्स, 25 साल हो गए 1998 वाले को, ठीक है। सो ये पोखरान 2 को 25 साल हो गए। नो अदर इवेंट सीव द फॉल ऑफ ढाका इन 1971 डिड मोर इंडिया सेल्फ स्टीम एट दिस प्लेस एंड ऑल। तो मतलब 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंस के बाद जो सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था इंडिया के लिए, वो परहैप्स 1998 वाला था, पोखरान टेस्ट एंड ऑल, दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। फिर ऑन May 11, 1998, 25 years back, the wheel was finally lifted after conducting 3 underground tests at पोखरान। ये पोखरान 2 कहलाएगा, है ना। The government was unusually candid in statement. PM Prime Minister Atal Bihari Vajpayee was explicit. Our intention were and still will always be peaceful, and we do not want to cover our action with a wheel of needless ambiguity. तो उन्होंने कहा था कि हमारा जो नियत है वो पीसफुल है, ठीक है। वी डू नॉट वांट वॉर,
after this test, he said. ठीक है, unleashed a fury of events, probably its confrontation with US. तो अभी हिस्ट्री पे जा रहे हैं कि once we did the test, USA tried to impose sanctions against New Delhi under Glenn Amendment. Sanctions means a sort of economic boycott. Economic boycott, but वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला. It was not that much long and all. ठीक है, just have an idea about it. But in 2023, it is evident that nuclear tests reflected a moment of profound epiphany and awakening of India's self-confidence and awareness of its potential and all. ठीक है, okay. So अब देखो इसमें क्या है, न्यूक्लियर टेस्ट पर बहुत सारे डिबेट्स होते हैं कि वेदर वी शुड हैव न्यूक्लियर वेपन और नॉट, वेदर इट्स गुड और नॉट. उस पर बहुत सारे डिबेट्स हैं, हम थोड़ा सा बता देते हैं उसको. अब देखो एक चीज, 2005 में इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था. सो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन, देखो होता क्या है, देयर इज न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एंड इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनएसजी. India has applied for it, but right now, till now, India is not a member of NSG. So if India is not a member of NSG, the issue is that India will not be able to get a lot of nuclear technology for other countries, from other countries. But exception was granted in 2005 when Indo-US civil nuclear deal happened in 2005. बहुत famous हुआ था ये. And with the help of that, even if India is not a member of NSG, it has got some waiver, some exception. And India will be getting a lot of benefits and supply of nuclear energies or nuclear materials. तो अब बात ये कि जब इंडिया को न्यूक्लियर वेपन यूज ही नहीं करना है तो न्यूक्लियर सप्लाई लेंगे क्यों? बिकॉज फॉर पीसफुल पर्पस. सो व्हाट डू मीन बाय पीसफुल पर्पस? न्यूक्लियर एनर्जी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? लाइक वी राइट नाउ नीड थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, है ना. इससे ज्यादा अच्छा न्यूक्लियर एनर्जी माना जाता है बिकॉज ऑफ कोर्स इट प्रोड्यूस अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू थर्मल, एंड थर्मल पावर कॉजेज मोर पॉल्यूशन एंड ऑल. ठीक है, तो न्यूक्लियर चीज सिर्फ वेपन के लिए नहीं यूज किया सकता है, पॉजिटिवली भी यूज किया सकता है. द न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज्ड पॉजिटिवली फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड विच इज हेल्पफुल फॉर डे टू डे यूज. ठीक है, तो उसके लिए ये साइन किया गया था. ओके, अब इस पे जाना है. अब देखो न्यूक्लियर वेपन पर बहुत सारे डिबेट होते हैं, वेदर न्यूक्लियर वेपन कंट्री शुड हैव और नॉट. तो देयर आर टू थिंग्स, जैसे ही इज टॉकिंग अबाउट यूक्रेन एंड ऑल. तो यूक्रेन ने क्या किया था, देखो यहाँ पे यूक्रेन, यहाँ पे रशिया. सो यूक्रेन वाज बिफोर 1991 अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर. ये भी क्वेश्चन है क्लैट का, क्लैट 2022 का, है ना. सो इट वाज अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर, बट वंस इन 1991 द यूएसएसआर गॉट ब्रोकन. यूक्रेन में बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन रखा हुआ था. Ukraine was the only country with the third largest stockpile of nuclear weapon when the Soviet Union collapsed. तो जब यूएसएसआर कोलैप्स किया था ना, तो यहाँ पे बहुत सारा न्यूक्लियर वेपन रखा हुआ था, बट इट डिसाइडेड टू गिव अप इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल. मतलब कहा कि अब हम जो न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेंगे. सो व्हाई यूक्रेन गिव अप इट्स न्यूक्लियर वेपन एंड व्हाट इट मींस एन इन्वेजन बाय रशिया. नाउ अब लोग ये बोलते हैं, दोज हु सपोर्ट न्यूक्लियर वेपन, दे से कि इफ टुडे यूक्रेन वुड हैव अ लॉट ऑफ न्यूक्लियर वेपन, then perhaps Russia would not have attacked it and all. तो उसको एक थ्योरी होती है, that theory is called as nuclear deterrence theory. Nuclear deterrence theory मतलब अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो दूसरा आपको अटैक नहीं करेगा. That's called as nuclear deterrence. That if I have nuclear weapon, no one else is going to attack me because of fear, है ना. So now since Ukraine has removed all those nuclear weapon, and that is why it cannot defend itself properly. तो इसी पर है कि as Ukraine which renounced nuclear weapon, renounce मतलब left, यानी सब rejected, है ना, faces nuclear threat and blackmail from Russia. तो अब न्यूक्लियर थ्रेट इसीलिए रशिया से हो रहा है कि इसलिए कि यूएस के यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है. इंडिया मस्ट सेलिब्रेट द विजडम एंड सैगैसिटी. सैगैसिटी मतलब ये तो विजडम of its leader who refused to catapult under pressure and help to develop a credible nuclear deterrent. लिखा है ना, credible nuclear deterrence. In a sense, we have a good amount of nuclear weapon with us, although we do not have any intention to use, but still it acts as a deterrent. No other nation can declare war against us because we have this and all. अब हालांकि इसमें भी क्रिटिसिज्म होता है, बहुत सारी चीजें, some support, some oppose it. We are not going in detail, otherwise it will be a long drawn process, है ना. Sorry. The trouble of India's aviation industry. Aviation मतलब हवाई जहाज से related, aeroplane industry.
इस पर एक देखो होता क्या है कि रिसेंटली आई होप यू आर अवेयर दैट गो फर्स्ट हैड टू फाइल फॉर बैंकरप्सी एंड ऑल, है ना, इट अप्रोच द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी पर अप्रोच करना पड़ा एंड ऑल, आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट। तो इट इज सेड कि एयरलाइन इंडस्ट्री में लॉसेस बहुत सारी कंपनी से बहुत ज्यादा होता है। जैसे यहां पर आप देखो सॉरी, इफ यू सी आउट ऑफ दीज 5 सिर्फ इंडिगो को फायदा हो रहा है, इट इज इन प्लस। रेस्ट ऑल देखो, गो एयर, एयर एशिया, विस्टारा, एयर इंडिया सब माइनस में चल रहा है, जीरो से नेगेटिव। स्पेशली एयर इंडिया का तो और ही खराब हाल था बिफोर, व्हेन दिस इज 2019-20 फिगर आप देख रहे हो ना। सो बिफोर बीइंग एक्वायर्ड बाय टाटा, बिफोर टाटा एक्वायर्ड, ये वाला जो फिगर है ये वाला, it was state run, earlier it was government run, so at that time Air India was in huge loss. Okay, so only you can see out of these 5 only Indigo is actually in profit. So एक क्वेश्चन ये भी होता है कि एयरलाइन इंडस्ट्री में प्रॉफिट बहुत मुश्किल होता है, लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर एंड ऑल, उसी पर एक आर्टिकल थी, जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट। अब देखो कौन कौन सी एयरवेज थी, बहुत सारी एयरवेज बंद हो गई, दामानिया एयरवेज, एनईपीसी, ये सब बंद हो गई इसी जमाने में। एयर सहारा चला 2005-6-7 के आसपास बंद हो गया। जेट एयरवेज आल्सो गॉट क्लोज समवेयर अराउंड 2018 एंड ऑल। फिर एयर डेक्कन भी चला, भी बंद हो गया 2020 में। किंगफिशर आल्सो गॉट क्लोज्ड। पारामाउंट, गो फर्स्ट अब देख रहे हो। So a lot of failures also do happen in airline industry, तो इसीलिए ये सब भी दिखाया जा रहा है। गो फर्स्ट का मार्केट शेयर कैसे था, यहाँ बीच में नीचे गिरा फिर ऊपर आया नॉट, इसी सब की डिस्कशन हो रहा है, इतना डिटेल नहीं जानना है। ये हमने बता दिया है। पीएम मोदी विल बी विजिटिंग एक्चुअली USA and this year in June, just have an idea about it. And Imran sent to 4-day remand, we have discussed it. Al Qadir trust case, he has been arrested in Al Qadir trust case, corruption charges and all. In AB के बारे में मैंने बताया है in the last class and last to last class, so go and read about those things, है ना। ठीक है, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं कि गो फर्स्ट has filed for insolvency proceeding under NCLT, National Company Law Tribunal। इसको आप पढ़ लीजिएगा NCLT के बारे में। It's a quasi judicial body in India that adjudicates dispute relating to Indian companies and all। ठीक है, तो अगर कोई भी कंपनी को, जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, सो इफ अ कंपनी हैज टू वाइंड अप, तो इन दैट केस एक्चुअली the NCLT is the body which is approached by the officials and all। ठीक है, officials of that company, so just have an idea about it। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, NCLT कई बार न्यूज में रहता है। So thank you everyone, thanks for watching, please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram and download the BYJU'S exam prep app। Thank you everyone, thanks for watching, have a nice day।